हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 12 सोर्सेस ऑफ एनर्जी आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to study chapter 12 and the chapter name is Sources of Energy. Let's start this chapter. All of us take food for survival and growth of our body. Vehicles like motorcycles, tractors, buses, trucks, ships and aeroplanes require fuel for their running. Even for cooking food, we require fuel. Do you know what is important? Which we get from the food or from the fuel. Yes, you are right. It is the energy. From the time you wake up to the time you go to sleep at night, energy plays an important role in your life. Energy is important in everyone's life, whether you notice it or not. Without sufficient energy, people face difficulties doing their day to day work. All forms of energy, including solar energy, light energy, mechanical energy, nuclear energy, and the energy of our body, are important to us. The energy of your body enables you to talk, to move, and to walk. Is it possible to do any task without energy? हम लोग जितने भी ह्यूमन है या फिर ऑर्गेनिज्म है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं। और जो भी गाड़ी है जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, बस, ट्रक, शिप और एरोप्लेन, इन सबको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। हम लोग को खाना बनाने तक के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जहाँ से खाना इनटेक करते हैं, जिस सोर्स से या फिर फ्यूल लेते हैं, वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? हाँ, आप सही है। ये क्या है? ये सारी चीजें एनर्जी है। और जब आप सो करके जब उठते हो और रात में सोते हो, तो जो आपको बीच में जो भी वर्क करते हो, उससे एनर्जी चाहिए। और जो एनर्जी है वो हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एनर्जी सबके लाइफ में बहुत जरूरी है। आप इसको चाहे नोटिस कीजिए या नहीं। बिना सफिशिएंट एनर्जी के जो लोग हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क को करने के लिए। जितने भी फॉर्म्स एनर्जी के, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, या फिर जो आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे बॉडी जैसे हम लोग टॉक कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, ये सब हम लोग को एनर्जी के कारण ही पॉसिबल है। क्या कोई भी चीज ऐसा है जो बिना एनर्जी के पॉसिबल है? The basic question is, from where do we get all the energy we need? In this lesson, we will learn about different sources of energy, their importance and limitations. We will also learn about the energy crisis and how and why it came about. The ways and means of saving and conserving energy in our daily life will also be discussed in this lesson. तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है कि जितने भी एनर्जी है हम लोग को जो जरूरत है वो कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एनर्जी के क्राइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है और क्यों आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। सो लेट्स मूव अहेड। Energy and introduction. Energy is a very common word frequently used in our day-to-day life. Energy is defined as the ability to do work. We require energy for all types of activities, including the activities within our body, with our body, or with other bodies. When we say a body has energy, it means that it is capable of doing work. Look around you. We'll find countless examples where energy is used to do work. An engine uses energy of its fuel to move a car along. A battery stores the energy needed to switch on the radio or tape recorder. The heavy flow of water can break the banks of rivers, as it also has energy in it. Similarly, the wind also carries enough energy to shake trees.
तो जो एनर्जी एक बहुत ही फ्रिक्वेंट और कॉमन यूज वर्ड है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, ऐसा एबिलिटी जो हम लोग को काम करने में सहायता करता है। हम लोग को एनर्जी चाहिए किस लिए? तो जितने भी एक्टिविटीज है, जैसे कि हमारे बॉडी को डन करने की बॉडी के वर्क को डन करने के लिए या फिर कुछ भी दूसरे बॉडीज के साथ कोई भी वर्क करना हो, तो हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं कि जब एक बॉडी के पास एनर्जी है, इट मीन्स कि वो बॉडी किसी भी वर्क को करने के लिए कैपेबल है। आप अपने चारों ओर देखिए और आप बहुत सारे काउंटलेस एग्जाम्पल पाइएगा जहाँ पे आप एनर्जी को देख रहे हैं कि वो एनर्जी की वजह से वो काम को वर्क डन किया जा रहा है। एक इंजन है जो कि से एनर्जी को यूज करके वो क्या करता है, जैसे कार का इंजन है, उसमें हम लोग फ्यूल डाले, फ्यूल क्या है? एनर्जी है, तो कार उस फ्यूल के वजह से मूव कर रहा है। एक बैटरी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, जब हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग उससे रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं। एक हेवी फ्लो वाटर है, तो जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या कर सकता है? जो भी रिवर्स के आसपास में बैंक बना उसको ब्रेक कर सकता है, और हमारे रिवर्स में भी एनर्जी है। हमारा जो विंड है उसके पास भी एनर्जी बहुत है, जिससे वो ट्रीज को शेक कर सकता है, पेड़ों को हिला सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, प्रोवाइडिंग कंफर्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड अलाउइंग अस टू live the way we want to. Since the beginning of mankind, we have made use of wood, water, and fossil fuel as a means of heating and making machines work. Almost for all types of activities, we rely on one or another form of energy. तो जो एनर्जी है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करने में, या फिर हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, या फिर हमें जैसे रहना हो उस चीज को वो हमारे लाइफ में वो वर्क डन होता है जो भी एनर्जी की वजह से होता है। जैसे कि मानवता की शुरुआत हुई उस टाइम से हम लोगों ने लकड़ियों को यूज किया, पानी को यूज किया, फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया किसी भी चीज को हीट करने के लिए, फिर मशीन को काम में लाने के लिए। जितने भी टाइप्स है एनर्जी के, जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं तो हम लोग अदर काइंड ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। Amount of energy used by a society is an indicator of its economic growth and development. Without energy, even our body would be unable to perform basic functions like respiratory, circulatory, or digestive functions, to name a few. Plants would also be unable to complete the process of converting carbon dioxide, water, and minerals into food without the light from the sun. Almost all the machines used for the production and manufacture of different types of items would be unable to operate without the use of a source of electrical energy. Almost everything we see around us, the clothes we wear, the food we eat, the houses we live in, the paper we write on, the vehicles we drive, all need energy to be created or transformed from some natural resource to the final product. Nowadays, the electrical energy has become so important that almost in all walks of life, electricity is required. For example, all electrical appliances in our homes and at our workplace require electricity. All the industries and factories run on electricity. तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो हमारी सोसाइटी की तरह यूज कर रहा है, और वो ये इंडिकेट करता है कि किसी का भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी के ऊपर। बिना एनर्जी के हमारा जो बॉडी है वो भी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, ना वो रेस्पायर कर सकता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर सकता है, ना ही डाइजेस्टिव फंक्शंस हम लोग का वर्क कर सकता है। जो प्लांट्स है वो भी अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा बिना सन के लाइट से एनर्जी लिए हुए, जैसे कि उसका प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को फूड में कन्वर्ट करना। तो उन सभी चीजों को करने के लिए प्लांट्स को भी सनलाइट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। जितने भी मशीन्स है जो हमारा प्रोडक्शन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट आइटम्स को, वो भी अनेबल हो जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमारी चीजें जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, या फिर जिस घर में हम लोग रहते हैं, या फिर जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं, या जो गाड़ियां हम लोग चलाते हैं, ये सभी चीजों को क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम लोग नेचुरल रिसोर्स से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक इस क्रिया को करते हैं। आज के दिनों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो
हमारे हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हम लोग अपने घर में यूज करते हैं या फिर वर्क प्लेस पे यूज करते हैं, वो सभी चीजों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जितना भी इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज है सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है। Various forms of energy. In our daily life, we use different forms of energy such as heat energy, light energy, mechanical energy, electrical energy, chemical energy, and sound energy. The most common forms of energy are heat, light, and electricity. We use all these forms of energies for different types of work. तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इस एनर्जी को अपने अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं। As per requirement, one form of energy can be converted into another form of energy by using specific types of devices or processes. We get energy for our daily use from different sources. We will learn about details of different forms of energy in other lessons. तो जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट है, हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिवाइस और प्रोसेसेस का यूज करते हैं। हम लोग एनर्जी अपने डेली लाइफ में डिफरेंट सोर्स से गेन करते हैं और हम लोग इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को दूसरे लेसन्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट एनीथिंग आउट ऑफ विच usable energy can be extracted is a source of energy. There is a variety of sources that provide us energy for different purposes. You must be familiar with coal, petrol, diesel, kerosene, and natural gas. Similarly, you must have also heard about hydroelectric power, windmills, solar panels, biomass, etc. तो सिंपल टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी चीज हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लोग को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकता है। जैसे कि आप लोग परिचित होंगे कोल से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस से। इसी तरह से आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी के बारे में सुन रखा होगा, विंड मिल्स के बारे में सुना होगा, सोलर पैनल्स और बायोमास के बारे में भी सुन रखा होगा। इट कैन बी इजिली सीन दैट सम ऑफ द एनर्जी सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Such energy sources are referred to as renewable energy sources, whereas the energy sources that we are using up and cannot be generated in a short period of time are called non-renewable energy sources. Thus, all the sources of energy can be divided into two categories: renewable sources and non-renewable sources of energy. तो हम लोग ये इजिली देख सकते हैं कि जितना भी एनर्जी सोर्सेज है उसे हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश कर सकते हैं। वैसा एनर्जी का सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाता है, जबकि वैसा एनर्जी सोर्स जैसे हम लोग यूज करते हैं और इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट नहीं कर सकते, इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोला जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट हो गया रिन्यूएबल सोर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेट्स चेक इट आउट। Here is your in-text question 12.1. Try to solve these questions. Non-renewable energy sources. You know that petrol and diesel extracted from crude oil are commonly used to run different kinds of vehicles such as cars, buses, tractors, trucks, trains, airplanes, etc. Similarly, kerosene and natural gas are used as fuels in lamps and stoves. You should also know that crude oil, coal and natural gas occur in limited and exhaustible quantities. They cannot be regenerated in a short period of time or used again and again. Hence, they are called non-renewable sources of energy. तो जैसा कि आप जानते हैं जो पेट्रोल है या डीजल है उसे क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये कॉमनली किसे यूज करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स को रन करने के लिए, जैसे कि कार्स, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन। इसी तरह से जो केरोसिन और जो नेचुरल गैस है उसे हम लोग फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं लैम्प्स को बर्न करने के लिए या स्टोव्स को जलाने के लिए। आप लोग को ये भी पता होगा कि जो क्रूड ऑयल, कोल और जो नेचुरल गैस है वो हमारे लिमिटेड है और वो एग्जॉस्टिबल है और इसे हम लोग फिर से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजनरेट नहीं कर सकते और इसे हम लोग दोबारा यूज करते जाते। इसलिए जो ये
चीजें ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कैटेगराइज होते हैं. इट इज अ फैक्ट दैट एट प्रेजेंट वी गेट most of our energy from non-renewable energy sources, which include fossil fuels such as coal, crude oil, and natural gas. Looking at the present and future energy requirements, it is expected that our oil and natural gas reserves may last for another 30 to 35 years, assuming no major new fields are discovered. Similarly, the coal reserves may last no longer than another 100 years. So, we must use these non-renewable energy sources judiciously and avoid all wastage. तो ये एक फैक्ट है कि हम लोग प्रेजेंट में जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जिसमें इंक्लूड है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस. तो प्रेजेंट को देखिए और फ्यूचर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो रिजर्व्स का 30 से 35 साल तक ही रह सकते हो. और जब तक के लिए हम लोग अगर इसके न्यू फील्ड्स एनर्जी के हम लोग डिस्कवर करते हैं तो शायद ये लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है. उसी तरह से जो कोल रिजर्व्स है वो भी 100 साल से ज्यादा तक नहीं टिक पाएगा. इसलिए हम लोग को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को न्यायपूर्वक यूज करना चाहिए और इसके जो भी वेस्ट है उससे अवॉइड करना चाहिए. Radioactive elements like natural uranium are also non-renewable. When the atoms of uranium are split into two or more parts, a very large amount of energy is released, which can be used to generate electrical energy. Let us now look into details of the fossil fuels such as sources of energy. तो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है जैसे कि नेचुरल यूरेनियम, ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. जब इसके एटम्स यूरेनियम के स्प्लिट होते हैं दो और दो से ज्यादा पार्ट्स में, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. अब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं. फॉसिल फ्यूल्स कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Fossil fuels such as coal, oil, and natural gas are important non-renewable sources of energy. Since the beginning of mankind, we have been using fossil fuels to generate heat, light, and electricity for various purposes. These are the primary sources for generating electrical energy in the world today. Over 85% of our energy demands are met by the combustion of fossil fuels. Carbon is the main constituent of these fossil fuels. Fossil fuels are excellent sources of energy for our transportation needs. You may be surprised to know that approximately 1.9 billion tons of coal is burnt in a year to generate electricity in the world. A large amount of chemical energy is stored in the fossil fuels. This stored chemical energy is converted into various other forms of energy such as heat, light, and mechanical energy. फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, ऑयल या फिर नेचुरल गैस है, वो हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बहुत ही अहम हिस्सा है. मैनकाइंड की शुरुआत में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी उस टाइम से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अपने वेरियस पर्पस के लिए. और ये प्राइमरी सोर्स है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं. और 85% जो हमारा एनर्जी डिमांड है वो हमारा फॉसिल फ्यूल्स को से पूरा होता है. जो कार्बन है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है इन फॉसिल फ्यूल्स का. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के लिए. और आप लोग सरप्राइज होंगे यह जान के कि अप्रोक्सीमेटली 1.9 बिलियन टन्स ऑफ कोल इज बर्न्ड इन अ ईयर. मीन्स 1.9 बिलियन जो टन्स है कोल का वो हम लोग एक ईयर में बर्न कर देते हैं, जला देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पूरी दुनिया में. जो लार्ज अमाउंट है केमिकल एनर्जी का वो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के रूप में स्टोर करके रखे. और ये जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि हमारा हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हो गया. You may be interested in knowing how the fossil fuels are formed. Millions of years ago, the remains of dead plants and animals were buried under the ground. Over the years, by the action of heat from the earth's core and pressure from rock and soil, these buried and decomposed organic materials have been converted into fossil fuels. तो आप लोग ये जानने के लिए इंटरेस्ट होंगे कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो बहुत साल मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो रिमेन्स है डेड प्लांट्स का या एनिमल्स का वो जमीन में ब्यूरी कर दिया जाता है, मीन्स गाड़ दिया जाता है. और उसके बाद फिर बहुत सालों के बाद उस पर जब हीट का एक्शन होता है अर्थ कोर से और जो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर रॉक से और सॉइल से, तो ये जो
ब्यूरिड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स में। Next topic is coal. Coal is formed in a way similar to the other fossil fuels, though it goes through a different processes called coalification. Coal is made of decomposed plant matter in conditions of high temperature and pressure, though it takes a relatively shorter amount of time to form. Coal is not a uniform substance, either its composition varies from deposit to deposit. Factors that cause this deviation are the types of original plant matter and the extent to which the plant matter decomposed. तो कोल जो है वो भी जैसे अदर फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार कोल का भी फॉर्मेशन होता है, और इस डिफरेंट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोलिफिकेशन। कोल कैसे बनता है, तो जो भी डिकम्पोज प्लांट मैटर मीन्स जो प्लांट मैटर को जो भी सड़ा हुआ हिस्सा है तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में वो क्या होता है, बहुत सारे टाइम उसे लगता है बनने में। जब कोल है वो एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस का नहीं बना हुआ होता है, या तो ये बहुत सारी चीजों का कंपोजिशन होता है। फैक्टर्स जो कि इसके डेविएशन में वर्क करते हैं वो है ओरिजिनल प्लांट मैटर और इसके एक्सटेंट, जो कि प्लांट मैटर डिकम्पोज हो रखे हैं जमीन के अंदर। There are different types of coal such as peat, lignite, subbituminous and bituminous. The first kind of coal is peat, which is merely a mass of dead and decomposing plant matter. Peat has been used as fuel in the past as an alternative to wood. Next to peat becomes lignite, a brownish rock that contains recognizable plant matter and has a relatively low calorific value. Lignite is basically the halfway point from peat to coal. The next phase is subbituminous, which is a shade of dull black with very little visible plant matter. This type of coal has a less than ideal calorific value. Bituminous coal is the best quality of coal. It is jet black, very dense and brittle. This type of coal has high calorific value. तो कोल का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है जैसे कि पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस एंड बिटुमिनियस। तो जो कोल का पहला काइंड है वो पीट है, जिसे में डेड और डिकम्पोजिंग प्लांट मैटर का मास होता है, ठीक है। और ये जो पीट है वो पास्ट में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था वुड के अल्टरनेटिव में। और नेक्स्ट फेज में जो पीट है वो लिग्नाइट बन जाता है। ये ब्राउनिश रॉक होता है जिसमें रिकॉग्नाइजेबल प्लांट मैटर और थोड़ा सा रिलेटिवली लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और जो लिग्नाइट है वो बेसिकली हाफ वे पॉइंट है पीट टू कोल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट फेज है लिग्नाइट के बाद सब बिटुमिनियस, जो कि शेड होता है डल ब्लैक कलर का और इसमें बहुत ही कम प्लांट मैटर विजिबल होते हैं। और इस टाइप की जो कोल है वो एक आइडियल कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में वर्क करता है। और हमारा जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो बिटुमिनियस है और ये जेट ब्लैक कलर का होता है, बहुत डेंस और ब्रिटल होता है। और ये जो टाइप का कोल है वो इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही इसका कैलोरीफिक जो वैल्यू है बहुत ही हाई होता है। Generation of electrical energy from coal. You may be curious to know that how do we get electrical energy from coal? It is basically by means of coal power plants. These power plants first burn the coal in large furnaces, creating tremendous amounts of heat. This heat is used to boil water in boilers so as to convert it into steam. The steam expands, causing pressure to increase in the boiler. A steam turbine is placed at the exit of the boiler so that the moving steam rotates the turbine. In this process, the energy from the moving steam gets converted into mechanical energy. The rotating turbine is used to spin a magnet inside a power generator. This generator is a large electromagnet that encases the spinning magnet. In this way, the electricity is generated, and so generated electricity is then sent to the national power grid, from where it is distributed in different areas. तो आप यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कोल से कैसे बनता है। तो ये बेसिकली कोल पावर प्लांट से जनरेट होता है। ये जो पावर प्लांट से पहले क्या करते हैं, कोल को बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाते हैं और जिससे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है। और ये जो हीट है उसे हम लोग उससे वाटर को बॉयल करते हैं, ये जो बॉयलर्स में, ठीक है, जिससे ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्टीम एक्सपेंड करता है तो उसके कारण बॉयलर में प्रेशर इंक्रीज होता है। और जो स्टीम है वो टरबाइन जहाँ पे वहाँ पे प्लेस हुआ रहता है बॉयलर के पास, वो रोटेट करता है टरबाइन को। इस प्रोसेस में जो एनर्जी है मूविंग स्टीम्स
का वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये जो रोटेटिंग टरबाइन है उसे हम लोग मैग्नेट जो पावर जनरेटर के अंदर रहता है उसे स्पिन करने के लिए यूज करते हैं। और जो जनरेटर है वो लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस करता है स्पाइनिंग मैग्नेट से। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होता है। और ये जो हमारा नेशनल पावर ग्रिड है वहां से हम लोग के हर एक डिफरेंट एरियाज में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Natural gas. Natural gas is another major sources of the energy in our country. Oil and gas fields have been found everywhere on the planet except on the continent of Antarctica. These fields always contain some gas, but this natural gas, methane, does not take nearly as long to form. Natural gas is also found in independent deposits within the ground as well as from other sources too. Methane is a common gas found in swamps and is also the byproduct of animals' digestive system. Although natural gas is a fossil fuel, it is cleaner burning than gasoline, but does produce carbon dioxide, the main greenhouse gas like petrol and diesel. Natural gas is also a finite source, though available in large quantities than the former. तो जो नेचुरल गैस है वो एक अनदर मेजर सोर्स है एनर्जी का हमारे कंट्री में। ऑयल और जो गैस फील्ड है वो भी हम इस प्लैनेट्स पे सब जगह पाया जाता है, बस अंटार्कटिका को छोड़ के वहां पे ऑयल और गैस फील्ड पाया नहीं जाता है। और ये जो फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ गैसेस हमेशा कंटेन रहते हैं। और ये जो नेचुरल गैस है मीथेन, उसमें कुछ भी इससे हम लोग नियरली कुछ भी फॉर्म नहीं कर पाते। जो नेचुरल गैस है वो इंडिपेंडेंट डिपॉजिट्स है, ये ग्राउंड्स के अंदर भी पाया जाता है और अदर सोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो मीथेन है वो एक कॉमन गैस है जिसे हम लोग स्वयं से ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर जो एनिमल्स का जो बाई प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसका जो बाई प्रोडक्ट निकाला उससे भी हम लोग मीथेन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जबकि जो नेचुरल गैस है वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, तो ये क्लीनर बर्निंग है, गैसोलीन से ये ज्यादा क्लीन होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं होता। और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल, नेचुरल गैस, ये सभी फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी से जो भी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है हम लोग उसे देखते हैं। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट अस फर्स्ट टेक एडवांटेजेस। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका जो यूज है उसके दोनों फायदे भी और नुकसान भी है। तो पहले हम लोग फायदे के बारे में जानते हैं। Generation of energy from the fossil fuels technology wise is easy and relatively cost effective. तो जो एनर्जी का जनरेशन है फॉसिल फ्यूल से, तो ये एक इजी वर्क है और ये थोड़ा सा इसमें खर्च भी कम पड़ता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हैव अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और फॉसिल फ्यूल्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होता है। फॉसिल फ्यूल्स कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जस्ट अ सिंगल लोकेशन। जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एक बार में बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड गैस टू द पावर स्टेशन कैन बी मेड थ्रू द यूज ऑफ पाइपलाइंस, मेक इट एन इजी टास्क। तो फॉसिल फ्यूल्स का जैसे कि ऑयल और जो गैस है इसको पावर स्टेशन तक पहुंचाना एक हमारे लिए इजी टास्क हो चुका है, क्योंकि ये जो इजी टास्क है वो पाइपलाइंस के द्वारा किया गया है। पावर प्लांट्स दैट यूटिलाइज गैस आर वेरी एफिशिएंट, और जो पावर प्लांट्स जो गैस का यूटिलाइज करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। Construction of power plants that work on fossil fuels is relatively easy technology-wise, and they can be constructed in almost any location. तो जो power plants का जो construction है जो कि fossil fuels पे work करते हैं वो technology-wise easy है और हम लोग किसी भी location, किसी भी जगह पे इसे construct कर सकते हैं। If we look into the disadvantages of using fossil fuels, we find that तब हम लोग एडवांटेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज मीन्स इसके नुकसान के बारे में पढ़ने वाले। Pollution is a major disadvantage of using fossil fuels as source of energy. During the process of combustion of fossil fuels, a lot of toxic gases and fly ash in case of coal are generated, which cause pollution of the atmosphere. These gases include carbon dioxide, which traps the sun's heat and may be causing global warming. Besides carbon dioxide, coal also gives off sulfur dioxide, which may cause acid rain. तो इसका जो डिसएडवांटेजेस में क्या किया, जो पॉल्यूशन एक मेजर डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल्स को सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करना। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का कंबसन करते हैं
तो उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस का प्रोडक्शन होता है और साथ में राख का भी प्रोडक्शन होता है। जब हम लोग उससे एनर्जी जनरेट करते हैं तो इससे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है और ये जो गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, सन हीट को ट्रैप करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब के अलावा जो कोल है वो जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जिससे एसिड रेन होता है। द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। द रेट एट विच दे आर बीइंग कंज्यूम्ड, देयर रिजर्वायर्स आर श्योर टू रन आउट सून। तो जो सप्लाई है फॉसिल फ्यूल्स का वो लिमिटेड है और इसको हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग इसी तरह से अगर कंज्यूम करते रहे तो इसका जो रिजर्वायर्स है तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। Extraction of fossil fuels, including coal, has resulted in the destruction of wide areas of land and has endangered the environmental balance in some areas. तो fossil fuels का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोल्स को जब हम लोग निकालते हैं उसके साइड से, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है और ये इन्वायरमेंटल बैलेंस को कुछ एरियाज में खतरे में डाल देते हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो ठीक से नहीं रह पाता, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर कोई भी खतरा वहाँ पे हो सकता है। Mining of fossil fuels, including coal, is difficult and rated as one of the most dangerous jobs. Many times it endangers the lives of miners. तो fossil fuels का जो माइनिंग प्रोसेस है उसमें जिसमें कोल को हम लोग माइन कर रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्ट जॉब है और डेंजरस भी है। और कब बहुत बार जो माइनर्स होते हैं उनकी लाइफ को ये पूरी तरह से खतरा में डाल देता है। यूज ऑफ नेचुरल गैस कैन कॉज अनप्लेजेंट स्मेल इन द एरिया। नेचुरल गैस का जो हम लोग यूज करते हैं तो उसका जो स्मेल है वो बहुत ही खराब होता है और पूरे एरिया में फैल जाता है। The particles, do you know, the particles formed on burning of fossil fuels are very dangerous. These small particles can exist in the air for indefinite periods of time, up to several weeks, and can travel for miles. The particles, sometimes smaller than 10 microns in diameter, can reach deep within the lungs. Particles that are smaller than this can enter the bloodstream, irritating the lungs and carry with them toxic substances such as heavy metals and pollutants. Those affected by these particulates could become afflicted with fatal asthma attacks and other serious pulmonary diseases. तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पे जो भी पार्टिकल्स फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हवा में इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि सेवरल वीक्स तक आप एयर में रह सकते हो और बहुत दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है कभी कभी 10 माइक्रोन से डायमीटर में बहुत छोटे होते हैं और ये हमारे लंग्स के डीप में पहुंच जाते हैं। और जो पार्टिकल्स है जो इस बहुत छोटे होते हैं ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और हमारे लंग्स को इरिटेट करते हैं, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जैसे कि अपने साथ हेवी मेटल्स और पोल्यूटेंट्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके ये मिल जाते हैं और हमारे बॉडी के वर्क को डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो अफेक्टेड पार्टिकुलेट्स है वो हम लोग को फैटल अस्थमा अटैक दे सकता है या फिर सीरियस पल्मोनरी डिजीज का कारण बन सकता है। Industrial societies need huge amounts of energy to run their homes, vehicles, and factories. More than 80% of this energy comes from burning coal, oil, and natural gas. These are called fossil fuels because they form from the remains of plants and tiny sea creatures that lived on Earth many millions of years ago. They include fuels made from oil such as petrol, diesel, and fuel for jet planes. तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने होम्स के वर्क को करने के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए और फैक्ट्रीज को रन करने के लिए। और जो 80% से ज़्यादा जो एनर्जी है वो बर्निंग कोल से आता है, ऑयल या फिर नेचुरल गैस से आता है और इसे फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। बिकॉज ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और टीनी सी क्रिएचर से बने होते हैं जो कि हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पाए जाते थे। और ये जो फ्यूल्स है वो ऑयल जैसे पेट्रोल, ये जो फ्यूल्स है वो ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल या फिर जेट प्लेन्स के लिए वर्क करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द एटम, न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम लोग पढ़ने वाले कि एटम से एनर्जी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं और ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। The atoms of a few elements such as radium and uranium act as natural source of energy. In fact, atoms of this element
spontaneously undergo changes in which the nucleus of the atom disintegrates. तो जो ये एटम्स का जो फ्यू एलिमेंट्स है जैसे कि रेडियम हो गया या फिर यूरेनियम हो गया वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इनफैक्ट ये एलिमेंट्स वो स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम्स और ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं. लेट अस सी हाउ वी गेट फ्रॉम द एटम energy from the atom. You should know that a large amount of energy is stored in the nucleus of every atom. The energy stored in the nuclei of atoms can be released by breaking a heavy nucleus such as uranium into two lighter nuclei. The splitting of the nucleus of an atom into fragments that are roughly equal in mass with the release of energy is called nuclear fission. हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी है हम लोग एटम से कैसे प्राप्त करते हैं. आप लोग जानते हो कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियस के हर एक एटम में स्टोर होता है और ये जो एनर्जी स्टोर रहता है न्यूक्लियस के एटम में वो रिलीज होता है जब इसके हेवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होते हैं. जैसे कि यूरेनियम है ये टू लाइटर न्यूक्ली में ब्रेक डाउन होता है. तो ये जो स्प्लिटिंग है न्यूक्लियस का एटम का वो फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है और रफली ये किसके इक्वल होता है अपने मास के जो कि एनर्जी रिलीज करता है और ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. A small amount of each fission mass vanishes in releasing huge amount of energy as per E equal to mc square, where m is the missing mass and c is the velocity of light. When a free neutron strikes a uranium-235 nucleus at a correct speed, it gets absorbed. A uranium-235 nucleus on absorbing a neutron becomes highly unstable and splits into nuclei of smaller atoms, releasing huge amount of energy in the process. During this process, a few neutrons are also released. These neutrons split other nuclei of the uranium-235. The reaction continues rapidly and is known as the chain reaction. In this process, a large amount of energy is released. This energy is used for boiling water till it becomes steam. Steam so generated is used to drive a turbine which helps in generating electrical energy. तो अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूजन जब होता है जिसमें मास वैनिश हो जाता है तो ये जब रिलीज करता है तो कितना एनर्जी रिलीज करता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. जो कि m है वो मिसिंग मास और जो c है वो लाइट का वेलोसिटी है. एक जब फ्री न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम का हमारा वेट कितना है 235 और ये न्यूक्लियस पे करेक्ट स्पीड पे जब ये स्ट्राइक करता है तो ये कितना एब्जॉर्ब कर लेता है अपने एनर्जी को. और जो यूरेनियम 235 है वो जब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और ये इसका जो न्यूक्लियर वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर एटम्स में. और जब ये स्प्लिट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज करता है और इस प्रोसेस के दौरान कुछ जो न्यूट्रॉन्स है वो भी रिलीज होते हैं. और ये जो न्यूट्रॉन्स स्प्लिट होते हैं वो अदर फॉर्म दूसरे यूरेनियम के साथ होते हैं. ठीक है. और ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूस होता है और रैपिडली होता है. इसे एक चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है और ये जो एनर्जी है वो बॉइलिंग वाटर के लिए यूज होता है और ये जो बॉइलिंग वाटर वो बाद में स्टीम बन जाता है. स्टीम से क्या होता है हम लोग जनरेट करते हैं एक एनर्जी को जनरेट करते हैं टरबाइन को हम लोग मूव करवाते हैं जिससे हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन होता है. ओके. The fission reaction is carried out in a controlled and regulated manner in nuclear reactors, else they would explode like bombs. With an uncontrolled chain reaction, in order to control the fission reaction, some of the neutrons released by the reaction are absorbed by the control rods made of boron cadmium. In our country, nuclear reactors are functioning at Tarapur, Kalpakkam, Kota and Narora for generating electricity. तो ये जो fission reaction है वो कंट्रोल और रेगुलेटेड मैनर में होने के लिए हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ जो भी ये बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए इस फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग कुछ न्यूट्रॉन्स जो कि रिलीज होता है जो कि बना होता है कंट्रोल रॉड से जैसे कि बोरोन कैडमियम से तो उसे हम लोग उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. हमारे जो कंट्री में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो कहाँ पे फंक्शन कर रहा है तारापुर में कर रहा है कलपक्कम और कोटा नरोरा में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कर रहा है. यहाँ पे आपका एक बॉक्स दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. तो ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस चीज को समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है इसमें डिफरेंस क्या है. मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन को बता दिया है यहाँ पे मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन बता रही हूँ. Energy is also produced when two light nuclei such as deuterium heavy hydrogen combine together to form a heavy nucleus. A process in which the nucleus of light atoms are combined to form a nucleus of a heavier atom with the release of energy is called nuclear fusion.
तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियस जैसे कि ड्यूटेरियम और जिसे हेवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, वो जब कंबाइन होता है दूसरे हेवी न्यूक्लियस के साथ, इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियर और लाइट एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस हेवी एटम का फॉर्म करता है और रिलीज करता है एनर्जी, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। Nuclear fusion requires very high temperatures, say of the order of 4 million degrees Celsius. This is the mechanism through which energy is produced in stars, including our sun. This reaction has been used to make hydrogen bonds. तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें बहुत सारे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और ये जो हाई टेम्परेचर कितना 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और ये जो मैकेनिज्म है वो इसी मैकेनिज्म में जो हमारा स्टार्स है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, इंक्लूडिंग हमारा सन भी यही तरीका अपनाता है। और जो रिएक्शन है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब्स को बनाने में यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। Do you know if the nuclear chain reaction is uncontrolled, all the nuclei in the piece of uranium split in a fraction of a second, and this may cause a devastating explosion, such as those of the atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan by America. तो अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, उसका जो न्यूक्लियर है वो यूरेनियम का पीस जो स्प्लिट हो जाएगा फ्रैक्शन में, और ये मिनट क्या सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, और इसमें डेवास्टेटिंग एक्सप्लोजन होगा। वैसा एक्सप्लोजन होगा जैसे कि अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया गया था। Next topic is uses of nuclear energy. Nuclear energy is non-renewable as the uranium fuels used as are consumed in the fusion reaction and hence are non-replenishable. Nevertheless, nuclear energy has many use. जो nuclear energy है हमारा वो non-renewable है, जैसे कि यूरेनियम जो फ्यूल्स है वो कंज्यूम किया जाता है फिजन रिएक्शन की, और ये एक नॉन रिप्लेनिशेबल एनर्जी, और हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका बहुत सारा यूजेस है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा वो हार्नेस करते हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। Nuclear energy is also being used to power submarines and ship. Vessels driven by nuclear energy can sail for long periods without having to refuel. तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है उसे हम लोग पावर सबमरीन्स और शिप में भी यूज करते हैं। अगर ये जो वेसल्स है न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, सेल कर रहा है, तो हम लोग इसे बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं बिना उसको रिफ्यूल किए। इसमें दोबारा जल्दी हमें फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। Radioisotopes obtained as byproducts in nuclear reactions are used in medicine, agriculture and research. जो रेडियोआइसोटोप्स है जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन करते हैं, उसे हम लोग मेडिसिन, एग्रीकल्चर और रिसर्च में यूज करते हैं। Hazards of nuclear energy. अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या खतरे हैं। On one side, nuclear energy seems to be an alternative to fossil fuels. On the other, it can also be hazardous. Nuclear reactions and the radioactive wastes are two major hazards that accompany production of nuclear energy. Let us know little more about them. तो एक साइड जो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं वो तो फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेटिव है, और दूसरी साइड ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो न्यूक्लियर रेडिएशन और जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो ये दोनों हमारे लिए मेन हजार्ड है, और ये न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ आता है। तो हम लोग इस हजार्ड को थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, harmful nuclear radiations may get accidentally leaked, released, which can penetrate human bodies and cause irreparable damage to cells. For preventing this from happening, nuclear reactors are covered with a thick shell of radiation-absorbent materials such as lead. However, accidental releases of this extremely harmful radiations into the environmental pose a constant threat to those inhabiting the surrounding areas. Perhaps you may be aware of two major accidents in nuclear power plants, one at the 3 Mile Island, USA, and the other at Chernobyl, the then Soviet Union. The immediate devastation caused in these two accidents through the release of harmful nuclear radiations was huge, and its full extent is yet to be assessed. तो जब न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस हम लोग करते हैं उस में, तो हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस का भी एक्सीडेंटली जब वो लीक हो जाए या रिलीज हो जाए तो ये ह्यूमन बॉडीज को बहुत ही पेनिट्रेट कर सकता है, खतरा पहुंच सकता है। इससे हमारे सेल्स को बहुत ही डैमेज हो सकता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस हैपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसे हम लोग थिक शेल ऑफ रेडिएशन से कवर करते हैं, जो कि
ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो लीड है, लीड इन सब चीज को कवर करता है। लेकिन कुछ एक्सीडेंटल रिलीज की वजह से बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में जब हुआ था तो इससे कॉन्स्टेंट ट्रीट हुआ था, और ये हमारे लिए क्या है कि हमारा जो सराउंडिंग्स एरिया है उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आपको शायद पता हो कि ये जो दो मेजर एक्सीडेंट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वो हो चुका है। एक हुआ है यूएसए में और दूसरा चेरनोबिल में हुआ, जहाँ पे सोवियत यूनियन में। ये जो इमीडिएट डेवास्टेशन है, जैसे ये दो एक्सीडेंट हुए हैं जिससे हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज हुआ था, बहुत ही ज्यादा यूज था, और ये इसका जो न्यूज है वो शायद आपको पता हो। नेक्स्ट है अनदर हजार्ड रिलेट टू द problems involving disposal of harmful radiant wastes, mainly spent fuels produced in the fission process. During nuclear reactions, a number of harmful substances capable of emitting nuclear radiations are generated. These substances are called nuclear wastes. Presently, most of the nuclear waste generated in nuclear power plants is simply being stored underground in storing lead containers. We have not yet been able to discover safe and more satisfactory methods of disposing the nuclear wastes. तो दूसरा हजार जो कि इस प्रॉब्लम से रिलेट है वो क्या है कि इसका जो भी हार्मफुल रेडिएंट वेस्टेज है, जैसे कि इसका प्रोडक्शन में जो भी फिजन प्रोसेस हुआ उसमें जो उसका डिस्पोजल हम लोग कहाँ करें, इसका डिस्पोजल मेनली हम लोग को पता नहीं है कि इस हजार्ड का जो भी वेस्ट है उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करें। न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस जो कि कैपेबल होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस को एमिट करने के टाइम में जनरेट करते हैं, तो वो बहुत सारे क्रिएट होते हैं, और ये जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियर वेस्ट है। प्रेजेंटली जो हम लोग का न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो सिंपली कैसे स्टोर किया जाता है, तो अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग लीड कंटेनर से कवर कर दिया जाता है। और हम लोगों ने अभी तक ऐसा चीज डिस्कवर नहीं किया है सेफ तरीका जिससे और सेटिस्फैक्टरी मेथड जिससे जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम लोग अच्छे से डिस्पोज कर सकें। देयर आर मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स के ओवर हम लोग अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं तो इसकी क्या एडवांटेज है। Unlike fossil fuels, the nuclear fuel used in nuclear power stations do not burn, hence no waste gets are produced. तो जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के लिए हम लोग का पावर स्टेशन होता है, उसी तरह हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूल के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है, जिसमें कुछ भी जलाया नहीं जाता, तो इससे कोई भी जो वेस्ट गैस है उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट फ्यूल मटेरियल्स इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें जो स्मॉल फ्यूल मटेरियल्स है स्मॉल अमाउंट में, उसे हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एड हम लोग कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।